اٹھا کے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھ کے اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں رہائشی علاقے میں موجود ایک پلاٹ پر قائم وہ چھوٹا سا قبرستان بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ رمیسا نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آج نوید کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ایسے میں گھر کی تنہائی اور کچھ دیر پہلے دیکھا گیا منظر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی صرف 12 بجے تھے۔ آج مالا واک کرنے اوپر نہ آئی تھی، ورنہ اس کا وقت اچھا گزر جاتا۔ ویسے بھی جب سے سرد موسم کی اندھیری راتیں شروع ہوئی تھی، مالا اوپر کم ہی آتی تھی، کیونکہ اسے سردیاں کچھ خاص پسند نہیں تھیں، جبکہ رمیسا اس سرد موسم کی دیوانی تھی۔ رمیسا کی شادی 6 ماہ قبل ہوئی تھی اور وہ رخصت ہو کر نوید عالم کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی، کیونکہ اس کی ساس اپنے بڑے بیٹے کے پاس لندن میں رہتی تھی، جبکہ نوید گورنمنٹ کا ایک اعلیٰ آفیسر تھا۔ اس کے باعث وہ نوکری چھوڑ کر لندن جانے پر آمادہ نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا آبائی گھر کرائے پر دے کر خود یہاں اس فلیٹ میں رہ رہے تھے، جہاں رمیسا کو اور تو کوئی مسئلہ نہ تھا سوائے اس خالی پلاٹ کے جو اس کے بیڈ روم کی عین کھڑکی کے سامنے تھا۔ اس پلاٹ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا۔ اس پلاٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں بنی ہوئی تھی۔ اماں حاجرہ نے بتایا کہ یہ ہندوؤں کا قدیمی قبرستان ہے۔ یہ قبرستان کم از کم رمیسا کو بہت پریشان کر رہا تھا، جبکہ اماں حاجرہ اور نوید کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا، اور نہ ہی کبھی کسی اور بلڈنگ والے نے کبھی شکایت کی تھی، اس لیے رمیسا بھی خاموش ہو گئی تھی۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ میں چھت پہ اکیلے واک کر کر کے بور ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آنے والا سایہ مالا کا تھا۔ رمیسا اسے دیکھتے ہی کھل گئی۔ رمیسا نے دیکھا کہ اس کی سفید رنگت میں قدرے پلاہٹ کھلی ہوئی ہے۔ وہ چہرے سے بیمار اور تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ رمیسا نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہتر ہے، مالا کا جواب ہمیشہ مختصر ہوتا تھا۔ یہاں شفٹ ہونے کے پہلے دن رمیسا اوپر واک کرنے آئی تو وہاں مالا پہلے سے موجود تھی۔ دبلی پتلی سی یہ لڑکی رمیسا کو دوستی کے لیے بہت اچھی لگی، مگر ان دونوں کی دوستی صرف چھت تک محدود تھی۔ نہ مالا نے کبھی اس کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ رمیسا اس کو اپنے ساتھ نیچے لے کر گئی۔ وجہ شاید ٹائم تھا، جو اوپر واک کے دوران اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ رمیسا کو اسے اپنے گھر لے جانا اچھا نہ لگتا تھا۔ مونگ پھلی کھاؤ گی؟ واک کے دوران رمیسا نے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا مونگ پھلی کا لفافہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، سوری میں مونگ پھلی نہیں کھاتی۔ عجیب لڑکی ہو یار، کچھ بھی نہیں کھاتی، نہ مونگ پھلی، نہ ریوڑی، نہ ہی کوئی اور ڈرائی فروٹ، یہاں تک کہ بھنے ہوئے چنے بھی نہیں کھاتی۔ رمیسا جب بھی اسے کوئی چیز کھانے کو دیتی وہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ رمیسا کو احساس ہوا کہ شاید مالا ہندو ہے، اس لیے وہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں کھاتی۔ اس نے اتنے ماہ میں آج تک مالا سے کبھی اس کے مذہب کے متعلق نہ پوچھا تھا، کیونکہ اسے اچھا نہ لگتا تھا۔ حالانکہ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اس قبرستان کے بارے میں پوچھے، جو کہ اس کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ پھر یہ سوچ کر کہ کہیں اسے برا نہ لگ جائے، وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ اچانک کالے رنگ کا بڑا سا بلا ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی گہری نیلی آنکھوں سے ان کی جانب گھور رہا تھا۔ وہ دونوں خوفزدہ ہو گئیں، جبکہ مالا ویسے بھی بلیوں سے ڈرتی تھی۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ٹوٹا پھوٹا جملہ ادا کرتی رمیسا کے پیچھے چھپ گئی۔ رمیسا نے چپل اتار کر بلے کی جانب پھینکی، وہ فوراً پیچھے بھاگ گیا۔ اس کے بھاگتے ہی مالا نے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ رمیسا نے اس کے پیچھے جا کر اس کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سیڑھیاں اترتے ہی ایسی غائب ہوئی کہ رمیسا کو اندھیرے میں نظر نہ آئی۔ مالا کی اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگنے میں وہ دل ہی دل میں ہنستی اور نیچے اتر آئی۔ جانے کیوں آج رمیسا کا دل چاہا کہ وہ مالا سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی سوال کرے۔ لاشعوری طور پہ اس کے اندر خواہش جاگ رہی تھی کہ وہ اس کے بارے میں جانے کہ وہ کون ہے۔ 4 ماہ سے ان کی ملاقات تقریباً روز ہی چھت پر اسی طرح ہوتی تھی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ مالا کہاں رہتی ہے، کون ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر آج اس نے اپنی گفتگو کا آغاز مالا کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کرتے ہوئے کیا، تمہارے گھر میں اور کون کون ہوتا ہے؟ مطلب؟ چلتے چلتے مالا نے رک کر حیرت سے اس کی طرف ایسے دیکھا کہ وہ بھی تھوڑا سا گڑبڑا گئی۔ مطلب ہے کہ تم اکیلی رہتی ہو؟ تم شادی شدہ ہو یا نہیں؟ اس
के सारे जुमले का एक लफ्ज़ में जवाब देकर वो इस तरह आगे बढ़ी कि मज़ीद कुछ पूछने की ख्वाहिश रुमैसा के अंदर दम तोड़ गई। वो बोली, मैं फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट नंबर 103 में रहती हूँ। रुमैसा के खामोश होते ही शायद माला को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वो पलटकर उसकी जानिब आते हुए आहिस्ता से बोली। इसी टाइम आसमान से ज़ोर से बिजली चमकी और साथ ही बादल गड़गड़ाने की आवाज़। जैसे ही माला ने सुनी वो बच्चों की तरह घबरा गई। रुमैसा ने देखा खौफ से इसकी रंगत जर्द पड़ गई है। वो बोली, मुझे बारिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बहुत डर लगता है। बारिश में भीगने से ऐसे महसूस होता है जैसे मेरा सारा जिस्म जल रहा है। पानी की बूंदें मुझे आग की तरह महसूस होती हैं। आपको पता है आग में जलना कितना होलनाक होता है? इसका तस्वर ही मेरे जिस्म में कपकपी तारी कर देता है। आज पहली बार रुमैसा ने इसको इतना बोलते हुए सुना था, मगर वो क्या कह रही थी रुमैसा को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इसकी ज़ुबान से निकलने वाले बेरब जुमले कभी कभी तो रुमैसा को ऐसा महसूस होता जैसे वो पागल है। इसी पल बादल एक बार फिर से गरजे। माला ने जवाब सुने बगैर सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगा दी, जबकि पीछे खड़ी रुमैसा में इतनी हिम्मत ना हुई कि आवाज़ देकर माला को रोक सके। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था माला छत पर ना आई थी। शाम में नवीद के साथ बाहर जाते हुए इसने बेख्तियार रुककर फ्लैट नंबर 103 पर नज़र डाली, जहाँ बड़ा सा ताला अंधेरे में भी नज़र आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं गई हुई है। ये सोचकर वो नीचे उतर आई। इसने पहली बार नवीद से माला का जिक्र किया। क्या वो लड़की हिंदू है? क्योंकि नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, मगर शायद वो फ्लैट नंबर 103 में रहती है। वो काफ़ी दिनों से ऊपर नहीं आई। फ्लैट नंबर 103? नवीद ने हैरत से दोहराया। तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, क्योंकि वहाँ तो कोई भी नहीं रहता। वो फ्लैट तो एक लंबे अरसे से खाली है। अच्छा, फिर हो सकता है मुझे सुनने में गलती हुई हो। नवीद वहाँ 1 साल से रह रहा था, इसलिए वो रुमैसा के मुकाबले में काफ़ी बेहतर जानता था। रुमैसा की समझ में ना आया कि वो माला के मुतालिक किससे पूछे। वो कुछ देर खड़ी सोचती रही, फिर नीचे उतरकर मेन गेट की जानिब आ गई, जहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उसे अच्छी तरह पहचानता था। जैसे ही रुमैसा इसके साथ जाकर खड़ी हुई, वो जल्दी से उठता हुआ बोला, अस्सलाम वालेकुम बाजी, खैरियत है? वो बोली, दरअसल मुझे एक लड़की के बारे में जानना है। लड़की के बारे में? अब्दुल ने काफ़ी हैरत से उसे देखा। हाँ अब्दुल भाई, फर्स्ट फ्लोर पर एक दुबली पतली सी लड़की रहती है, जो रोज़ाना छत पर मेरे साथ वॉक करने भी आती है, मगर वो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही। अब्दुल ने पूछा, क्या आप इसका नाम जानती हैं? इसका नाम माला है, गोरी सी है, बहुत लंबे बाल हैं। हाँ, फैसल साहब की बेटी है, फ्लैट नंबर 107 में। नाम तो मुझे इसका पता नहीं, लेकिन बाल इसके काफ़ी लंबे हैं। आप वहाँ जाकर पूछ लें, शायद वो आपकी मुश्किल हल कर दें। अब्दुल की बात सुनते ही वो वहाँ नहीं रुकी, बल्कि तेज़ तेज़ चलती फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 107 के सामने आके खड़ी हो गई और बिना सोचे समझे बेल पर हाथ रख दिया। कौन? दूसरी जानब से दरवाज़ा खोलकर बाहर आने वाली एक 40 से 45 साल औरत थी, जो रुमैसा को अपने सामने देखकर थोड़ा सा हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेस नवीद हूँ। इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर मेरी रिहाइश है। मुझे दरअसल माला से मिलना है। हमारे फ्लोर पर माला नामी कोई लड़की नहीं रहती। दरअसल मुझे इसने अपने फ्लैट का नंबर 103 बताया था, तो उन्होंने बोला 103 तो पिछले कई सालों से खाली पड़ा है। बहुत साल पहले एक फैमिली यहाँ आबाद थी, फिर इनके साथ एक हादसा हुआ। वो लोग जी घर छोड़कर चले गए। ना चाहते हुए भी रुमैसा पूछ बैठी, कौन सा हादसा? वो खातून बोली, सुना है इनकी जवान बेटी अचानक गायब हो गई थी। बहुत तलाश किया मगर ना मिली। शायद बदनामी से बचने के लिए इसके माँ बाप घर छोड़कर चले गए। लेकिन इनके जाने के कुछ दिनों बाद फ्लैट से उठने वाली बदबू ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। जब पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो एक नौजवान लड़की की तहफ़्फ़ुनशुदा लाश पड़ी हुई थी। इसकी बदबू ने पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में लिया हुआ था। रुमैसा ने पलटकर फ्लैट नंबर 103 के दरवाजे पर नज़र डाली, मगर लड़की तो गायब हुई थी, फिर लाश कैसे मिली? रुमैसा ने हैरत से सवाल किया। यही बात तो आज तक किसी की समझ में नहीं आई कि आखिर वो मर्द और औरत कौन थे। क्या वाकई वो इस लड़की के माँ बाप थे, जो अपनी बेटी की लाश को इस तरह फ्लैट में छोड़कर भाग गए?
पुलिस का ख्याल था कि वो शायद लड़की वापस आ गई थी जिसे इसके माँ बाप ने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया और फिर लाश को छोड़कर भाग गए। उफ, किस कदर सफाक की। रुमैसा ने खौफ से झुरझुरी ली। हाँ, यही वजह है कि ये फ्लैट दोबारा आबाद नहीं हुआ। कातिल इसे वीरान करके चले गए और फिर चाहने के बावजूद कोई इसे आबाद ना कर सका। रुमैसा फ्लैट नंबर 103 का हादसा चंद ही दिनों में बिल्कुल फरामोश कर बैठी, मगर माला की तलाश इसके वजूद के अंदर कहीं इंतज़ार कर रही थी कि शायद कभी ज़िंदगी में इसे माला दोबारा मिले। यही वजह थी कि वो बिल्डिंग में आने जाने वाली हर लड़की को गौर से देखती। कभी किसी स्टोर में जाना होता तो इसकी नज़रें माला को खोजती रहती। सड़क से गुजरने वाली हर लड़की में वो माला को तलाशती रहती, मगर माला ना जाने कहाँ गुम हो गई थी, जो हर बार रुमैसा की तलाश को नाकामी का मुंह देखना पड़ता। फिर एक दिन माला उसे नज़र आ गई। वो जाती सर्दियों की एक शाम थी। अम्मा हाजरा को सुबह से नज़ला ज़ुकाम ने जकड़ रखा था, जिसके बायस वो अपनी चारपाई पर रज़ाई ओढ़े पड़ी थी। नवीद आलम ऑफिस के काम के सिलसिले में कोयटा गया हुआ था और इस तन्हाई में रुमैसा का दिल बेहद घबरा रहा था। फिर इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बैरूनी दरवाजे के पास से गुजरकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की जानब कोई बड़ा है। तन्हाई में उभरने वाले तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसने ग्रिल के बाहर झांका। एक बहुत लंबे बालों वाली लड़की तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी। मैसा को लगा वो माला है। वो जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़े इस लड़की के पीछे लपकी तो ऊपर छत पर जाकर देखा वो लड़की गायब हो चुकी थी। मैसा ने थोड़ा मजीद आगे बढ़कर देखा, छत बिल्कुल खाली पड़ी थी। वो एकदम घबरा के वापस पलटी तो इसका पाँव इस काले बिल्ली से टकरा गया, जो हमेशा माला को खौफजदा कर देता था। बिल्ली ने बिलबिला के रुमैसा की जानिब देखा। रुमैसा खौफजदा होकर नीचे भागी। सामने अम्मा हाजरा खड़ी थी। बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? नवीद साहब का फ़ोन आया था, तुम्हारी खैरियत पूछ रहे थे। बात करते करते अम्मा हाजरा को एहसास हुआ कि रुमैसा काफ़ी घबराई हुई है। क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है? जवाबन रुमैसा ने कुछ देर कबल वाला सारा वाक़या सुना दिया, जिसे सुनते ही अम्मा हाजरा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी बात मानो बेटा, इस लड़की को भूल जाओ। वो तुम्हारे ख्यालों से निकलकर एक शक्ल में ढल गई है, जो तुम्हें हर वक्त जहाँ वहाँ दिखाई दे रही है। उसने गहरा सांस लिया। शायद अम्मा हाजरा सही कह रही थी। इसी पर बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। रुमैसा काफ़ी का मग लेकर अपने कमरे में मौजूद खिड़की के सामने आ गई। अभी से पर्दा हटा के बाहर देखा ही था कि इसे महसूस हुआ कि कब्रिस्तान के बीचों बीच कोई खड़ा है। और जल्दी से खिड़की की आड़ में हो गई, शायद कोई चोर डाकू होगा। जब वो साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया तो रुमैसा ने देखा वो एक लड़की थी, जो धीरे धीरे चलते रोड पर लगे पीले बल्ब के नीचे आ खड़ी हुई। लंबे स्याह बाल उसकी पुश्त पे फैले हुए थे। वो यकीनन माला थी, जो कि रुमैसा का वहम हरगिज़ नहीं था। इसने जल्दी से खिड़की खोलकर नीचे झांका ताकि माला को आवाज़ देकर अपनी तरफ मुतवज्जो कर सके, लेकिन इसकी आवाज़ देने से कबल ही माला ने बिजली के खंभे के पास खड़े होकर ऊपर देखा। इतनी दूर से भी रुमैसा को लगा माला से देख के मुस्कुरा रही है। माला की मुस्कुराहट में न जाने क्या था कि रुमैसा खौफजदा हो गई। जबकि इसी पल माला पलटी और सुस्त कदमी से चलती हुई कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। रुमैसा ने आंखें फाड़कर चारों जानब देखा। कब्रिस्तान बिल्कुल खाली था। उफ मेरे खुदा! खौफ की एक झुरझुरी ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। वो खड़े खड़े ज़मीन पर गिर गई। ज़मीन पर गिरते वक्त माला के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे, बारिश की बूंदें मेरे जिस्म पर आग की तरह बरसती हैं। तुमने कभी किसी को जलते हुए देखा है? जलने की तकलीफ इसके साथ रुमैसा बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो सब इसके पास हॉस्पिटल में मौजूद थे। बकौल नवीद के रुमैसा एक हफ्ते बाद होश में आई थी। वो क्यों बेहोश हुई थी वो ये चाह कर भी किसी को ना बता सकी, मगर इसकी हालत के पेश नज़र वो घर तब्दील कर लिया गया और ज़िंदगी में दोबारा वो कभी इस तरफ ना गई जहाँ आखिरी बार इसने माला को देखा था। माला कौन थी, कहाँ रहती थी, ये सब जानने की ख्वाहिश दम तोड़ चुकी थी। क्या शायद वो जान गई थी कि माला कौन है?